इतना न मुझसे, इतना न मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं इतना आवारा। Okay, we are live. Okay, let's get going. Hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel and offline lectures for 12th Maths. Expect that everybody maintains the silence now. Yes. So we are solving exercise 6.6. Basically, this exercise deals with applications of differential equations. I repeat, it deals with applications of differential equations. There are various applications that we are going to see here. We have seen the first application, that is population, growth of the population. Yes, sir. And as we see, the seventh question is also based on the population, growth of population. Okay, so let's start with this question now. क्या दिया है यहाँ पे? It says find the population of a city at any time t. मतलब find the population of the city at any time t. You have to find out population as a function of time t. First thing. Thank you for silence. Given that, what's given there? Given that the rate of increase of population is proportional to the population at that instant. At the instant. This is the first thing that they have given. Secondly, and that in a period of 40 years, the population increased from 30,000 to 40,000. So these two things are given there, as usual. So we say, what are the conditions given? Conditions which are given here, they are at t is equal to t is equal to 0. Yes, sir. In a period of 40 years, the population increased from 30,000 to 40,000. तो टाइमर शुरू किया when it was 30,000. So I'll say P is equal to P0 नहीं लिखते हुए हम उसको लिखेंगे 30,000. Yes. And secondly, at T is equal to 40 years. 40 years, P has increased to 40,000. समझ में आ गया? Yes. ओके और मुझे सिर्फ ये पूछा गया, तीसरा वाला कंडीशन नहीं दिया है यहाँ पे. So I just need to find out population as a function of time. ठीक है, शुरू करते हैं. So let P is the population at any time. Let P is the population at any time t. At any time t. So what is dp by dt? Is equal to rate of increase of population. Rate of increase of population. Increase of population. So this rate of increase of population is directly proportional to the population at that instant. dp by dt is equal to, or it's proportional to p. That gives me dp by dt is equal to k into p. That gives me dp upon p is equal to k into dt. Well, that gives me the variable separable form. And that gives me क्या? Log p is equal to kt plus c. Well, this is the first equation. और मुझे यहाँ पर दो equations दिए हैं, दो unknowns find out करने हैं. Correct? I'll call this as equation number 1. Now in this case, I will substitute at t is equal to 0. P is equal to 30,000. I will substitute this over here. Yes, sir. ये मैं इधर substitute करूँगा. Yes, sir. तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? बोलिए. This will give me what? Log of 30,000. Log of 30,000
सी इज इक्वल टू सी. एक्चुअली मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. दिस आई हैव टू सब्स्टिट्यूट. हाँ जी, I will have to substitute this over here. So what I get there? This will give me बोलो log P is equal to KT plus log of 30,000. Right? Now I'll transfer it on the other side. This will become log P minus log of 30,000. So that will be equal to actually log of, correct, log of P upon 30,000 is equal to KT. ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. फिर यहाँ पर मुझे दूसरा कंडीशन इम्पोज करना पड़ेगा. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? एट 40 इयर्स एट t इज इक्वल टू, the second condition becomes at t is equal to 40 years. P is equal to 40,000. कर लेंगे सब्स्टिट्यूट. क्या मिलेगा बताओ? log of 4/3 is equal to 40k. Correct? Or that will give me k is equal to 1 upon 40 log of 4/3. Well, let me substitute this over here. तो क्या मिलेगा बताइए? log of P upon 30,000 is equal to T upon 40 log of 4/3. Correct? I'll transfer this here. क्या बनेगा? And take antilog of both the sides. So P upon 30,000 is equal to 4 upon 3 raised to T upon 40. Or in other words, the final answer would be P is equal to 30,000 into 4/3 bracket raised to T upon 40. That's the answer. Is this okay? Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन. क्या दिया है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अगेन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन. सेम टाइप. अभी आप लोग मुझे इसको आंसर करेंगे फटाफट. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. इज द सेम. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन of a city is directly proportional to the size of the population. मतलब same like dp by dt is directly proportional to the present population. अब क्या दिया है यहाँ पर? और भी कुछ दिया है. For a certain city it is found that the constant of proportionality is 0.04. हाँ, k उन्होंने readily बनाया दिया है. They have given you the value of k. K is equal to 0.04. Find the population of the city. To find P of the city after 25 years at T is equal to 25 years. If it is known that initial population is 10,000. If P is equal to 10,000 at T is equal to 0. मतलब ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन फाइंड आउट करने के बोला है और के ऑलरेडी दिया हुआ है. टेक ई इज इक्वल टू दिस. थोड़ा सा अलग करके दिया है क्वेश्चन बट नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बेसिकली ये हमारा P0 होगा ना. चलिए शुरू करते हैं. तो आप बताइए मुझे dp बाई dt इज इक्वल टू kp dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म फटाफट कर लेते हो. log p is equal to kt plus c. log p is equal to kt plus c. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. ये पहले वाले स्टेप्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं ना. सो अब पहला नाउ यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा भाई. k इज इक्वल टू दिया है ना मुझे 0.04. तो लेट मी सब्स्टिट्यूट.
तो ये बन जाएगा log p इज इक्वल टू 0.04 t प्लस c. ठीक है, एनी डाउट्स अबाउट दिस? ओके, क्या हो रहा है? हाँ हेलो, चलिए कंटिन्यू करते हैं भाई. So let me substitute here. So I'll call this as equation number 2. This is equation number 2. अब कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. एट क्या लिखेंगे? t is equal to 0, p is equal to 10,000. Okay, let me substitute this over here. What do we get there? बोलिए. This will give me log of 10,000 is equal to c. ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना है c के लिए, राइट ना? I have to substitute this value of c. तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताइए? log p is equal to 0.04 t plus log of 10,000. ये log of 10,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, so this become log of p upon 10,000 is equal to 0.04 t. Any doubts? समझ में आ रहा है? अब तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3, व्हाटएवर. ठीक है ना? दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. सो आई कॉल दिस एज इक्वेशन 3. अब मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड p at t is equal to 25 years. To find at t is equal to 25 years, what is the population? क्या बनेगा? log of p upon 10,000 is equal to 0.04 into 25. तो ये तो 1 आएगा, है ना? 1 आ गया. Now this is log of whatever you have. The base is always e if you do not mention that. So what does it become? P upon 1000 is equal to e raised to 1. P upon 10,000 is equal to e raised to 1, or p is equal to 10,000 into e. But we have been given the value of e, 7182. This is equal to 10,000 into 2.7182. 4 digit हो जाएंगे. So the population is 27,182 at t is equal to 25 years. Is this okay? Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैंने 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? नहीं. 4th वाला इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, बट वो पॉपुलेशन थोड़ा सा अलग टाइप का है. इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया. नहीं, पहला वाला भी तो बैक्टीरिया का ही था ना. ऑलरेडी ध्यान दें.
थोड़ा सा अलग टाइप का है ये, देखते हैं, मतलब नॉट मच डिफरेंट, इट्स द सेम कैटेगरी, सेम टाइप, which is involve few calculations. This is involving little bit of calculations. So the rate of growth of bacteria, वही दिया, सब सेम, सब सेम, मतलब the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, मतलब dp upon dt is proportional to p. फिर क्या दिया है यहाँ पे, if initially there were 1000 bacteria, हाँ, t is equal to 0, p is equal to p0 is equal to 1000, करेक्ट. क्या दिया है फिर वहाँ पे, नंबर डबल्स इन 1 आवर, तो नंबर डबल इन 1 आवर, मतलब at t is equal to 1 hour, p is equal to 2 times p0, which I'll call it as 2000. सही है. And then the third thing they are asking, क्या पूछा है, find a number of bacteria 2.5 hours after this. So at t is equal to 2.5 hour, you have to find out what is p is, and this is given. Any doubts? क्या करना है या मैं क्या करूँ? नहीं, आप लोग करोगे घर पे इसको या मैं कर लूँ, आप बताइए. वुड यू लाइक टू ट्राई? सेम है टाइप, सेम. इधर नहीं रहे, टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मेरा को एग्जाम नहीं देने का, मेरा हो गया है प्रिपेयर, प्रैक्टिस. तुम लोगों को खुद को प्रैक्टिस मिले, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सेम टाइप है, घर पे कर सकते हो क्या? ऐसा मुझे लग रहा है. मुझे लगता है ये मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए. सेम टाइप है, बिल्कुल सेम टाइप है, तो आई शुड नॉट सॉल्व दिस, क्योंकि एग्जाम मेरे को नहीं देना, आप लोगों को प्रैक्टिस भी होना चाहिए मुझे लगता है. तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आई लीव इट टू. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. आप इसको क्या बोलना है बोलिए, होमवर्क बोल लीजिएगा, पढ़े दिया है. ठीक है, सेम टाइप है, इसको मैं नहीं करूँगा सॉल्व. चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप. अब पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ जाता है, पॉपुलेशन जो होता है वो टाइम से बढ़ता है ना. एग्जैक्टली अपोजिट चीज होती है रेडियो एक्टिव डीके के अंदर. रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, हैव यू हर्ड ऑफ द रेडिएशंस? रेडियो एक्टिविटी के लिए आपने सुना है उसके बारे में? क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में? अल्फा रेज, बीटा रेज, गीमा रेज, दे आर गिवन आउट, करेक्ट. इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो मास है वो कम होता जाता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इमिटेड. हैव यू हर्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी? ओके, वी नो दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एलिमेंट्स लाइक रेडियम, सीजियम एक्सेट्रा डिसइंटीग्रेट विथ टाइम. टाइम के साथ वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, दे डिसइंटीग्रेट with time. It means that mass of the substance decreases with time. The rate of disintegration of such elements is always proportional to the amount of present at that time. If x is the amount at any material present at time t, then dx by dt, this dx by dt is called as the rate of disintegration. क्या कहते हैं इसको? Rate of disintegration. The rate of disintegration, and this rate of disintegration is directly proportional to the amount present. X is the amount present at any time t, amount of substance at any time t. ठीक है, तो why this minus sign? ये माइनस साइन क्यों होता है वहां पे? क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा x कम होगा, इसलिए माइनस साइन है. Is this okay? That's the reason why this sign is minus. I hope this is clear. तो देखते हैं अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बात करते हैं. अब इसको हम क्या बोलेंगे, लेट, हम बोल सकते हैं n is equal to number of radioactive particles, number of
रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। अच्छा, इसे कई बार हम ये भी बोल सकते हैं एम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जगह पर इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं इसको एम बोलूंगा तो दिस बिकम्स मास ऑफ द रेडियोएक्टिव पार्टिकल और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। या फिर कई बार हम इसे एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, और एक्स व्हाट, एक्स इज द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स और नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स। तो कई बार उसको एम, एन या एक्स से भी डिनोट किया जाएगा, ठीक है, इजंट इट। तो यहाँ पे व्हाट विल बी डी एन बाई डी टी बोल दीजिए, या डी एक्स बाई डी टी, या डी एम बाई डी टी। इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। And this rate of disintegration, the disintegration, law of disintegration or law of decay says this is directly proportional to the number of substances or atoms or particles present at any time t. तो फिर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा therefore dn by dt is equal to k into n, बट याद रहे यहाँ पर इसको मैं माइनस साइन लगाऊंगा, और माइनस साइन लगाने का सिंपल सा रीज़न मैंने आपको क्या बताया, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, इस वजह से। आई होप दिस इज ओके। तो ये क्या बन जाएगा, therefore dn upon n is equal to minus k times dt. well this is the variable separable form, we integrate this, इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा फिर, this will become, बोलिए, log n is equal to minus kt plus c, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब log n to the base e होता है, हाँ याद रखिए। I'll put it in the box. Now this is a logarithmic equation. Of course I can convert this into, so it will become n is equal to e raised to minus kt plus c, or I can write it as e raised to minus kt into e raised to c. Now let me call this, इसे मैं बोलूँगा नया कांस्टेंट, इसे c1 बोलूँगा, तो ये c बन जाएगा, करेक्ट। तो क्या मिलेगा फिर बताइए मुझे, this will become therefore n is equal to c times e raised to minus kt, सही है। तो ये भी और एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। आई होप दिस इज ओके, ठीक है। नाउ फिर यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन एट t इज इक्वल टू t0, एट t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इज n0, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n0 इज इक्वल टू c, सही है। फिर इसको अगर इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आएगा, n0 टू c, सॉरी e रेज टू माइनस kt। वेल दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियोएक्टिव डीके। एनी डाउट्स अबाउट दैट, समझे। अब इसमें और एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। यस, हाफ लाइफ भी इसमें होगा। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में भी है अगले चैप्टर में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिविटी का हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फॉर द हाफ द अमाउंट और मास ऑफ द सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट। आधा सब्सटेंस खत्म होने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। आई होप दिस इज ओके। सो आई विल से t इज इक्वल टू, हम बोलेंगे t हाफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और n होगा n0 बाई 2। तो इक्वेशन तो हमने अभी लिखा है यहाँ पे ऊपर, क्या इक्वेशन था वो, वह इक्वेशन था n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस kt, ये फॉर्मूला था, करेक्ट ना। ये हमने अभी देखा था। आई हैव टू यूज दिस नाउ। चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बनेगा, n इज इक्वल टू n0, t इज इक्वल टू t हाफ, क्या बन जाएगा, इट बिकम n0 अपॉन 2 इज इक्वल टू n0 टू e रेज टू माइनस k इज k, और t के जगह पर होगा t हाफ,
समझे? ये दिस गेट्स कैंसिल, क्या मिलेगा मतलब बताइए? दिस विल गिव मी हाफ इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस के इंटू टी हाफ, समझे? नाउ टेक log टू द बेस ई, टेक log टू द बेस ई, क्या बनेगा? log ऑफ हाफ minus k into t half. is equal to minus k into t half into log e. The log e is 1. Log e is 1. क्या बनेगा फिर बताइए? Now this will be written as, इसको मैं लिखूंगा log of 2 raised to minus 1 is equal to minus k into t half. सही है? अब ये माइनस वन भी इधर आएगा, तो दिस विल बिकम, नाउ ये log मतलब कौन सा log है रे? दिस इज log टू द बेस e, जिसको हम नेचुरल log बोलेंगे. तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस एज log, लेट मी कॉल दिस एज ln. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ln इज द नेचुरल log. ln, समझे? तो दिस विल बिकम माइनस टाइम्स नेचुरल log ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी हाफ. तो ये तो माइनस साइन गया, करेक्ट? Yes, sir. So what is the t half is equal to? Now this natural log of 2 comes out to be, natural log of 2 की अगर मुझे कैलकुलेशन करना, natural log of 2 is nothing but log 2 to the base e, correct? log 2 to the base e. अब आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे हैं, log a to the base b is equal to log a upon log b, लेकिन जो बेस होगा वो कौन सा होगा? वो कोई भी कॉमन बेस हो सकता है. So it can be log to the base 10 also. समझे क्या? Yes. तो I'll apply it over here. क्या बन जाएगा बताओ? This will become log 2 upon log e. सही है? log 2 upon log e. Now this e is equal to 2.718. अभी previous question में हमने लिया था उसका. And if I do that calculations, तो ये आएगा point जो भी आएगा. If I'll do that. Now these are log to the base 10, हाँ? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब this is log to the base 10. क्या समझे? So when I'll do that, this comes out to be 0.693. 0.693. तो बस ये मैं log 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा. Therefore, what is t half is equal to? T half is equal to 0.693 upon k. क्या समझे? Is that clear? Any doubts? समझे क्या? तो ये फॉर्मूला हमको t half के लिए यूज करना है, 0.693 upon k. ठीक है? फिजिक्स में हम अगर देखेंगे तो इसके अलावा भी और कुछ एवरेज लाइफ करके एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, बट फिलहाल तो चलिए शुरू करते हैं इसको. रेडियो एक्टिविटी का 3 या 4 प्रॉब्लम्स है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड. शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है यहाँ पे? देखते हैं. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. यस, Here is directly proportional to m. A upon dt directly proportional to m. Let's begin. The rate of disintegration. Initial condition में time is equal to 0. The rate of disintegration of radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time. It means Here upon dt equal to k into m. या वही चीजें आएंगे ना, मतलब Any लिख देते ना. या n लिखो, x लिखो, mass लिखो, कोई भी नहीं. The time during which the original mass, if they are saying mass, I'll call this as m. Let m is equal to mass of radioactive substance at any time t. At any time t. So what will be dm by dt? The rate of disintegration.
रेट, ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, हम डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मास, और वो क्या दिया हुआ है, dm अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू एम, फिर dm अपॉन m इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, फिर इंटीग्रेटिंग वी गेट, फिर log m इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ये पहला, इसको हम एक्सपोनेंशियल में नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो पहला कंडीशन आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, is equal to 0 and equal to 1.5. at t is equal to 0, हाँ, तो मास ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5, हाँ ये दिया यहाँ पे ओरिजिनल मास, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 1.5 ग्राम, विल डिसइंटीग्रेट टू एट t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क m इज इक्वल टू 0.5, ये अपने को बताया गया है। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 1.5 ग्राम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस विल बिकम log ऑफ 1.5 इज इक्वल टू c, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इसको यहाँ पे, तो क्या आएगा, therefore log m is equal to minus kt plus log of 1.5. Okay, now you transfer it on the other side, क्या मिलेगा, log c is equal to this, correct ना, इसलिए log of m upon 1.5 is equal to minus kt। चलिए put it in the box, equation number 2। फिर अब क्या, k का वैल्यू लेते हैं, at they are asking find the time during which this happens, है ना। तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, at t is equal to question mark m is equal to 0.5, इसलिए सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, so this will become log of 0.5 upon 1.5 is equal to minus k into t, सही है। So what I get there, this is log of 1/3 is equal to minus kt। फिर आगे बताइए, तो k का वैल्यू चाहिए तो किसको उधर ट्रांसफर, well right, this is log of 3 raised to minus 1 is minus kt, bring this minus sign here, this will become minus log 3 is equal to minus kt, and therefore the time of this is equal to log 3 अपॉन k, ये आंसर होगा। k का वैल्यू उन्होंने देना चाहिए था, नहीं दिया है, तो फिर ये आंसर के फॉर्म में ऐसे हो। इज दिस ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर, कम ऑन, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया है देखिए, अमाउंट दिया है, मतलब एक दिया है, सेम सेम वैसे करें, एक सर्टन अमाउंट ऑफ डीके, 6th क्वेश्चन है डीके। इसके पहले कौन सा किया था, हाँ ओके, द रेट ऑफ डीके, आई डायरेक्टली स्टार्ट हियर। यहाँ पे दिया क्या है एक बार लिख लेते हैं, द रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। इनिशियली बोले तो एट टी इज इक्वल टू 0 देयर आर 25 grams of certain substance, so x बोलो या m बोलो जो भी है, I'll call this x is equal to x0 is 25 gram, and 2 hours later t is equal to 2 hours later it is found that 9 grams are left, so x is equal to 9 gram, find the amount left after 1 more hour, t is equal to 3, what is x is equal, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना।
अब शुरू करते हैं, कैसे? डायरेक्ट लिखो, लेट x is equal to the amount of substance at any time t. Therefore dx is by dt is equal to minus kt. dx upon minus kx ना, dx upon x is equal to minus k times dt. Integrating we get क्या आएगा? log x is equal to minus kt plus c. First equation. This will be our first equation. बराबर है क्या? फिर मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. At t is equal to 0, x is equal to x0 is equal to 25 ग्राम. कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट. क्या बनेगा? log of 25 is equal to c. हाँ, is equal to c. इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा मुझे? log x is equal to log 25 इधर आएगा मन ही मन में, दूसरा से log of x upon 25 is equal to minus kt. Let me call this as equation 2. सही है. अब अगला वाला कंडीशन, अगला कंडीशन क्या बोल रहा है? At t is equal to 2 hours 9 grams. क्या मिलेगा फिर ये? log of 9 upon 25 minus 2k. Therefore what is minus k is equal to 1 by 2 log of 9 upon 25. So this I'll take over here, so raised to half. So minus k क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे माइनस के ही लिखना है इधर. सही है ना? So minus k is equal to, ये हाफ इधर जाएगा, raised to half मतलब स्क्वायर रूट. So is that equal to log of 3 by 5? Correct? Yes. Log of 3 by 5. Now this I will substitute over here. And what I get there? देखिए क्या बनेगा? log of x upon 25 is equal to minus k मतलब ये सब कुछ आएगा. It's t into log of 3 by 5. सही है? हाँ, अब तीसरा वाला पूछना है मुझे. सही है ना? I'll just put it in the box now. This is equation number 3. और अब मुझे पूछा है at t is equal to 3 hours what is x is equal to. तो क्या बनेगा बताइए? It will become log of x upon 25 3 into log of, I'll bring this 3 over here, log of 3 का क्यूब upon 125 is equal to log of x upon, कुछ नहीं, इसका एंटी लॉग ले लीजिए. So this x upon 25 27 upon 125 5 है. So x is equal to x is equal to 5.4 gram. That's it. Is this okay? समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन.
Question number 12. It's a star question. सॉक्सियाइड्स कुठे गेले रे आज? चलो, ये स्टार वाला प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे बताइए इसको। हाउ इज दैट? Decomposes at the rate of, this is star problem. 10 because परसेंटेज आ गई। हाँ 3% इसीलिए तो इसको 100 हो जाएगा ना। हाँ तो देखते हैं, आप बता दो, बस है, रिक्शा है, क्या है, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। Let's get going. It's a star question. Yes, Shraddha Deshmukh. How are you? Welcome, welcome. You are in 12th? Which college? पेन कहाँ गया बे? पेन कहाँ गया मेरा? भी तो था यार। पेन नहीं मिला तू मार खाएगा। पेन नहीं मिलेगा तू मार खाएगा, चुप बैठ। टॉप व्यू में नहीं दिख रहा, तो यस यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस श्रद्धा, हाँ 9:30 बजे से पहले चुप करो, नहीं तो आज मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, सो रेडियम डिकम्पोजेस, ये स्टार क्वेश्चन है, दिस इज स्टार प्रॉब्लम। एक्चुअली ऊपर से वो दिखाई नहीं दे रहा था। Radium decomposes at the rate proportional to the amount present at any time. So that means, let me say X is the amount of a substance at any time. Let X is equal to amount of radium present at any time t. ओके, सो हमें पता है कि भाई dx बाई dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। फिर इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, सही है। फिर इसे लिखेंगे dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt। फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है इसलिए, है ना, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड देन इट बिकम्स, बताइए, log x is equal to minus kt plus c। ये देखो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके ग्रेट, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब 50% amount disappears in first year. अभी यहाँ पर हमें बताया गया if p% of the amount disappears in 1 year, okay, if p% disappears in 1 year, what percent of amount of radium will be left after 2 years? So हाँ परसेंटेज है इसका, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, यस लेट
let at T is equal to 0. t is equal to 0 x is equal to x0. ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ. दिस आई एम एज्यूमिंग. So if I'll substitute here, what is this going to give me? Log of x0 is equal to c. And then I'll substitute this in the equation. Let me just substitute this here. So what does that give me? This will give me the second equation. This will give me the second equation. Log of x is equal to minus kt plus log of x0. You see? Isn't it? I'll call this as equation number 2. I'll call this as equation number 2. Okay, तो अब क्या करेंगे भैया? इक्वेशन नंबर 2. क्या आगे बताइए. आगे अपना को अभी अपना ये सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? फालतूगिरी मत कर अभी. तू खुल गया है ना, और खुलना है. नाउ यहां पर हमें लिखना है भाई. क्या लिखेंगे? देखिए हमें यहां पर बताया गया है कि p% disappears in 1 year. हाँ, 1 year मतलब at t is equal to 1 year, what is the amount left? Can you tell me? p% निकल गया उसमें से. हाँ, x माइनस या x0 माइनस. कैसे देखते हैं? परसेंटेज सिस्टम हम पिछले 10-12 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं. मेरे को इतने परसेंट मिले. हाँ, तो यहां पे हमको क्या करना है? देखिए, दिस इज गोइंग टू गिव मी इनिशियल अमाउंट. इनिशियल अमाउंट कितना है? इनिशियल अमाउंट एंड अमाउंट लेफ्ट ओवर. इसके लिए इतना, तो उसके लिए कितना. इनिशियल अमाउंट अगर 100 है, देखिए यहां पे गौर से देखिए, आई हैव टू यूज हियर दिस थिंग. 100 है इनिशियल अमाउंट. अगर 100 है तो p% डिसअपियर हो गया. परसेंट तो बचा कितना? 100 माइनस p. 100 माइनस p दैट इज परसेंटेज. p% गया, 5% गया तो कितना बचा? 95%. तो p% गया तो कितना बचा? 100 माइनस p. लेकिन इनिशियल अमाउंट 100 है क्या? इनिशियल अमाउंट x0 है. तो इनिशियल अमाउंट अगर x0 होगा, इसके लिए इतना, तो उसके लिए कितना? हाँ, पगला गया क्या? अरे तुमको यूनिटरी मेथड याद नहीं? इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना? अरे p इज इक्वल टू कहां से आ गया? कुछ भी. तुम्हारे को अगर तुमको 600 में से समझिए 420 मार्क्स मिले, 420, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय 6. कैसा आता है ये डिवीजन? इसके लिए इतना, तो 100 के लिए कितना? बराबर है क्या? सो इट इज दिस इनटू दिस अपॉन दैट ना. तो इट विल बी 100 इंटू 420 अपॉन 600. इसलिए आप इसको 6 से डिवाइड करते हो. याद नहीं है? यूनिटरी मेथड. हाँ, तो यहां पर क्या x0 माइनस p आएगा? इट इज दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दैट. मतलब क्या आएगा? कम ऑन, इट इज x0 इंटू 100 माइनस p अपॉन 100. ये है अमाउंट लेफ्ट ओवर. और इसके लिए वो स्टार है. तो द अमाउंट लेफ्ट ओवर एट t इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ये इतना. कितना? इट इज x0 इंटू 100 माइनस p अपॉन 100. Is that clear? Is this okay? तो अब मुझे इसको क्या करना है भैया? ये मुझे अभी सब्स्टिट्यूट करना है इधर. I have to substitute. So substituting in equation 2 क्या मिलेगा बताइए? ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे. So what do we get there? This will give me log of
ये इसका लॉग चाहिए। इसका लॉग लेते समय मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट करेंगे, मतलब ये जो है ना इसको सेपरेट करेंगे 100/100 माइनस पी अपॉन 100 इंटू x0। सही है, सही है। तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ दिस तो गेट्स कैंसल ना, सो दिस इज 1 माइनस पी अपॉन 100 इंटू x0। समझ में आ गया, इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x0। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बता दूं, क्योंकि इफ आई से, इसे मैं बोलता हूं log a, ठीक है, इसे मैं बोलूंगा log a और इसे मैं बोलूंगा log b, तो ये बनेगा log ऑफ a इंटू बी एंड दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b। समझ में आ गया क्या रे, व्हाट यू गेट हियर, कम ऑन टेल मी everybody please। This will become log of 1 minus p upon 100 plus log of x0 is equal to minus k plus log of x0, which gets cancelled. Any doubts? So what do we get there? This minus k is equal to log of 1 minus p upon 100, and this I will substitute in equation 2. Substitute in equation 2, क्या मिलेगा, I'll get what equation I get there? Yes please. So this is log x is equal to minus k के जगह पर ये into t as it is, into t as it is, huh? So it will be 2 into log of 1 minus p upon 100 plus log of x0। भैया ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? अब मुझे वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? नाउ व्हाट आई वांट टू सब्स्टिट्यूट at, they are asking what will be the, what percentage of amount of radium will be left after 2 years, percentage में ही चाहिए मुझे वो। so now at t is equal to 2 years, what is, पहले तो x चाहिए मुझे, but this has to be converted into the percentage. are you understanding that? Yes, तो पहले x find out तो कर ले। I'll substitute here log of x is equal to t के जगह पर 2 आएगा, log of 1 minus p upon 100 प्लस log of x0। सही है? तो ये 2 जो है वो इधर जाएगा और log a प्लस log b log of ab, तो कुल मिलाकर क्या बनेगा, log of 1 minus p upon 100 का स्क्वायर इंटू x0 is equal to log x. Take antilog. What is x is equal to? 1 minus और x0 into 1 minus p upon 100 का स्क्वायर। अब मुझे इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। I have to put it in the percentage form. कैसे करेंगे? अब देखो, परसेंटेज में करने के लिए मैं दोबारा चाहूंगा वहीं पे, इनिशियल अमाउंट एंड अमाउंट लेफ्ट ओवर, बोलिए, अभी गलती मत करना, ठीक है? कम ऑन टेल मी, इनिशियल अमाउंट क्या था, x0। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पहले परसेंटेज में दिया था ना वो p%। हाँ, तो इनिशियल अमाउंट x0 था एंड दिस इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर। व्हाट वाज दैट, x0 इंटू 1 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर। अगर इसके लिए इतना तो 100 के लिए कितना, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम 100 इंटू x0
100 into x0 1 minus p upon 100 brackets whole thing divided by x0. This x0 gets cancelled. तो क्या मिलेगा? Now can I write this as equal to 10 का square into 1 minus p upon 100 का square. ये दोनों इकट्ठा ही मैं लिख लूँगा. I mean I'll send this 10 inside. तो ये बनेगा 10 minus 10 upon 100 मतलब p by 10 ब्रैकेट का स्क्वायर. इज दिस ओके? और इतना परसेंटेज हो गया क्योंकि इट्स 100 फॉर 100 ये कितना होगा. सो दिस इज द परसेंटेज लेफ्ट ओवर. इज दिस ओके? समझ में आ गया क्या? बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड दिस इज द आफ्टर 2 hours amount left over is equal to this much. Therefore after 2 hours percentage amount left over is given by 10 minus p upon 10 bracket a square percent. I hope this is clear. This is the star question. Is this okay? Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go for the next question. अगला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. द नेक्स्ट वन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. मेरे ख्याल से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने देखा है. देखा है किसमें? कौन सा चैप्टर? नहीं देखा? नहीं. थोड़ा सा स्ट्रेच करो. कुछ लोगों को बजने की इतनी चाहत होती है. हाँ नहीं मैं कुछ अभी करेंगे. मिल गया? कौन सा चैप्टर? केटीजी में है. तो इसी साल का है वो. तो वो पढ़ना है सर. मिल गया ना? ये लो. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स. 12th में भी टेक्स्ट बुक में दिया होगा उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. हाँ थर्मल प्रॉपर्टीज. ओके कोई बात नहीं. तो न्यूटन ठीक है. अभी मैं पढ़ा रहा हूँ. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट. क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? और वो लॉ जो है उस लॉ को हमें क्या करना है? यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन.
यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन्स लॉस के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन है, 2 questions are there on based on Newton's law. Okay. So what does it say? डिस्टर्ब हो रहा है। Newton's law of cooling, it says that the rate of change of cooling heated body, the rate of change of cooling of the heated body at any time t is proportional to the difference between the temperature of the body and that of its surrounding medium. Now let's say for example यहाँ पर एक say चाय है at temperature 100 degree Celsius, T is equal to 0. Surrounding temperature theta 0 is equal to 30 degree Celsius. तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट? So I will call this as d theta because with respect to time t, theta will go on changing. So d theta by dt is called as rate of fall of temperature. एंड ये जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है उसे अलग शब्दों में हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, बराबर क्या? एंड व्हाट आर दिस सेइंग, दिस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कहिए या रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है? So this d theta by dt is directly proportional to what? Difference between the temperature of the body. Body का temperature क्या होगा? Theta minus theta 0, and this theta is going to change at every point. समझे क्या? d theta by dt. Okay? अब तो इसको मैं लिखूंगा therefore d theta by dt is equal to k into theta minus theta 0. सही है? नहीं, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर यहाँ तुमको है ना, हाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, हाँ, तो व्हाट यू गेट देयर देन दिस विल बिकम थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू के इंटू डी टी. सही है? वेरिएबल सेपरेट फॉर्म, तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे? इसको इंटीग्रेट कीजिएगा. कैन यू टेल मी द इंटीग्रेशन लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू के टी प्लस सी. बस इसको लेके आके जाना है. वी जस्ट हैव टू टेक दिस फर्दर, पुट द लिमिट्स, फाइंड आउट के, फाइंड आउट सी. बस, हाँ, बहुत सिंपल है. चलिए शुरू करते हैं अभी इसको सॉल्व करना. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3. नहीं, अभी करेंगे ना, कल के. तो इतने सारे फॉर्मूले तुमको 25 बार फिर ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि अगर मैं जल्दी छोड़ूंगा तो ज़्यादा फॉर्मूले पूछूंगा. हर एक को कम से कम 5 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले पूछूंगा. एंड आई नो व्हाट यू डोंट नो. मुझे पता है कौन कौन सा फॉर्मूला नहीं बता सकता, ये तो मैं गेस कर ही सकता हूँ. ट्राई करें. एक करना है, 5 करने हैं, कर लेते हैं. फिर मैं 925 को शुरू करूंगा, ठीक है? Find if a body cools from 80 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए यहाँ पे शुरू करें, प्रोफेशन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? या इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो लिखना है यहाँ पे मुझे एट
T is equal to 0, what is the temperature? हाँ 80 डिग्री सेल्सियस। फिर वो कूल करता है कितने को? थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस एट द रूम टेम्परेचर ऑफ, रूम टेम्परेचर यहाँ पर है थीटा 0 is equal to 25 degrees Celsius, but this is taking place in what time? 30 minutes. So this is the temperature noted at 30 minutes. सही है ना? Find the temperature of the body after 1 hour. ये T is equal to 60 minutes, क्योंकि 1 नहीं लिख सकता मैं, इधर मिनट लिखा है तो इधर मिनट. Theta is equal to question mark. Is this okay? First condition, second condition, third condition. By Newton's law of cooling. बताइए. यस, क्या बनेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? डी थीटा बाई डी टी डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा 0. सही है? ओके, तो इसको क्या लिखेंगे? देखो, टी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू के इंटू डी टी. यू सी, विद दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेट दिस नाउ. क्या मिलेगा बताइए? log of theta minus theta 0 is equal to kt plus c. Is this okay? We just need to put it as equation number 1. अब एक एक करके इसको सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे भैया, हैं? चलिए बताइए. पहला वाला सब्स्टिट्यूशन होगा at t is equal to 0, theta is equal to 80 डिग्री सेल्सियस. तो भैया क्या हो जाएगा बताइए? This will become, if log of, बोलो, theta is equal to 80 माइनस ये तो हमेशा 25 ही होगा, is equal to c. Therefore c is equal to 55, है ना? तो need to substitute this over here. भैया इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इधर, तो क्या मिलेगा बताइए? This will give me log of, अब ये log ऑफ 55 जो आएगा वो इधर आएगा, नहीं तो उसे उधर को उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं. सो दिस विल बिकम log ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू के टी प्लस log ऑफ 55. करेक्ट, isn't it? लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. क्या मिलेगा? ये सेकेंड इक्वेशन. चलिए फिर क्या बनेगा? दिस विल गिव मी, अब दूसरा वाला कंडीशन सब्स्टिट्यूट करना है. एट टी इज इक्वल टू 30, आधे घंटे के बाद ना, 30 मिनट्स, थीटा इज इक्वल टू 55 ना, कितना? 50 डिग्री सेल्सियस. इधर लिखा था ना 50, आप इंग्लिश में वगैरह कुछ लाते ही नहीं. चलिए कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट कर लेते. क्या आएगा ये? लॉग ऑफ 50 माइनस 25, मतलब log ऑफ 25, क्या है? इज इक्वल टू के इंटू 30, हाफ नहीं लिखने का, 30 प्लस log ऑफ 55. अब ये log उधर से आएगा, क्या बनेगा फिर? ये log ऑफ 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू 30k. therefore what is k is equal to 1 upon 30 log ऑफ 5/11. 5/11 सही है ना? इधर सब्स्टिट्यूट करने का, तो व्हाट यू गेट देयर? यस, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25, क्योंकि थीटा 0 हमेशा उतना ही रहने वाला है, इज इक्वल टू टी अपॉन 30 लॉग ऑफ 5/11 प्लस log ऑफ 55. अब ये हमारा इक्वेशन बन गया जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कहीं आते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, सो एट टी इज इक्वल टू 60 मिनट्स अब चाहिए मुझे, एक घंटे के बाद ना. एट टी इज इक्वल टू 60 मिनट्स, व्हाट इज थीटा? सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट log ऑफ थीटा माइनस 25 2 times log of 5/11 plus log of 55.
ऊपर भेज देंगे 90 लोग के लिए। 2 इधर भेज देने का, फिर log a plus log b, log of ab, so this become log of 25 upon 121 into 55, correct? 11 5s and 11 11s, तो क्या मिलेगा ये? This is log of 125 upon 11 is equal to log of थीटा माइनस 25, तो कर लीजिएगा इसको, थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस whatever, क्या है दिस विल बी, एक मिनट, चलो so this is going to be theta is equal to 36.36 degree Celsius. What is the answer given? चेक करो आंसर क्या दिया है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन अभी करते हैं। कितना? 20,000। चलो फिर शुरू कर दे, अभी 21 हो गए रे। कितने क्वेश्चंस रह गए अभी? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट हियर? 2 ही क्वेश्चंस रह गए अभी। कौन सा 3? एक कौन है कि वेपरेशन ऑफ, चलिए ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर मैथ्स। आप जहाँ बैठे, जो मैंने बोले थे वो 25 क्वेश्चन जो है वो जाते समय दिखाओ पहले आज के, मैं क्वेश्चंस बस पूछ रहा हूँ अभी। स्टार्ट फॉर्मूला सेशन।